Hello, am I audible to all of you? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning to all of you. Hope you all are fine. Yes or no? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. Okay, myself Manish Thakur. I am going to teach you the metal casting process, right? This is not the metal casting. Today we are going to discuss about the metal forming process, right? Okay, ignore the casting process, right? Ignore. We have already covered almost all things about the metal casting process, but today we are going to introduce what is the actually metal forming process is, right? Okay. So basically, we are going to enter in the module 2 here, right? Module 2 consists of the metal forming process as well as metal cutting process, right? In the metal forming process, we will cover of introduction of the bulk deformations as sheet metal forming process, and which includes the plastic deformations and ill criteria. And fundamental, we will also discuss about the hot working and cold work process, and what is the advantage and disadvantage of hot and cold working process, right? And we will estimate the load for the different type of forging process. Let's से क्यों entry कर रहा है इतना जी? Okay. Uh, so we will discuss about the some load which is required for the rolling process or forging process, extrusion or drawing process. Right? These all are the what? Bulk deformation process. And what is sheet metal process? Sheet metal process includes the shearing, deep drawing and bending process, right? तो इस सब में क्या करेंगे, हम पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. We will discuss about the how the power and load can be calculated, right, in the case of metal forming process, right? ठीक है. And the next topic is metal cutting process, right? ठीक है. In this process we will discuss about the different type of tools, right? That is single point cutting tool and multi-point cutting tool, right? Whenever I will discuss, you can understand what is the difference between a single point cutting tool and multi-point cutting tool, right? Orthogonal cutting is what, and oblique cutting is what. The difference between two you will understand, right? Tip formation, how, what is the mechanism of tip formations? Tool wear and their life will also be estimated there, right? Okay. We will also discuss about the different type of turning process which are operated in the lathe machines, right? Also, we have already discussed about the drilling process, right? Okay, we will more discuss more thing in the lecture sessions, right? And we will estimate some numerical value, numerical problem, right? We will discuss some numerical problem. Also, we will go through the introductions part of the CNC machining process in the module 2 here, right? Understand? Yes or no? Please tell me. Hello, am I audible or not? Yes, sir. you are doing. Okay. But I'm not. Okay, right now look at the figure here. What the figure tells? This is what? Tell me, this is what? This is what? This is the frame of an automobile, right? Frame of a car, right? Okay, Yes. clear? Okay. And this is the what? This is the utensils, right? बर्तन जो हम use करते हैं kitchens में, right? For making the food here, right? ठीक है. These all are the product which are produced by using the metal forming process, right? So basically, metal forming process is also another type of what? Another type of manufacturing process. Manufacturing process में हमने क्या बताया था first? Casting process, right? Casting process में क्या करते हैं? Product को क्या करते हैं? Develop करते हैं या product को produce करते हैं. But there is also another process which is used to develop or manufacture a particle or object, right? That is known as a metal forming process, right? So this is the also another technology, right? The metal forming is one of the most important production technology in the modern industry, right? Okay, so it has a special place because it helps to produce a part of superior mechanical properties with the minimum wastage of material, right? ठीक है. तो minimum wastage of material का मतलब क्या होता है?
कि कास्टिंग में आप क्या करते हैं, कास्टिंग में मेटल को क्या करते थे, पोर करते थे, राइट। लिक्विड मेटल को पोर करने के बाद आप क्या करते थे, उस प्रोडक्ट बनाते थे, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता था उसको क्या कर, दैट वाज द वेस्टेज, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल जो रह जाता था, जो आपका राइजर में बच गया, जो रनर में आपका जो सॉलिडिफाई हो गया, या जो स्क्रू में सॉलिडिफाई हो गया, दिस ऑल विल बी द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद जितना भी मटेरियल मेरे पास बचा वो क्या हो गया, वेस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, राइट, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दिस वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज। समझ में आई बात, ये वेस्टेज जो है उसको मिनिमाइज कर देंगे। ऑल्सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द स्ट्रेंथ, हार्डनेस, that can be improved relative to the metal casting process. Am I right or not? Am I right or not? Hello? यस सर। रिसाइकल नहीं देखिए, कर सकते जो चल रहा था राइजर वगैरह में? राइजर में क्या बोले, सर जो एक्स्ट्रा मेटल बच जाता तो उसको सर रिसाइकल तो कर सकते हैं ना, वापस मेल्ट रिसाइकिल कर। कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो फिर से आपको तो दूसरा प्रोसेस में चला गया ना। लेकिन एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन टाइम में, एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन के टाइम में जो मेटल वेस्टेज हुआ यहाँ पे कास्टिंग के तुलना में आपका मेटल फॉर्मिंग में क्या हुआ, कम हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। रिसाइकिल तो उसको कर सकते हैं, फिर से क्या करेंगे, उसको फिर से मेल्ट करेंगे, फिर से उसको पोर करेंगे, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, उसका प्रोडक्शन में जो मेटल का वेस्टेज हुआ मेटल फॉर्मिंग के केस पे कम हुआ, राइट, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यदि मान लो डिफॉर्मेशन हुआ, राइट, तो डिफॉर्मेशन हुआ, तो डिफॉर्मेशन के कारण मान लो फॉर्जिंग सुने हो नाम, फॉर्जिंग स्मिथी शॉप, जो लोहार क्या करता है, किसी चीज को क्या करता है, पीट पीट के बनाता है ना ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या यस करता है, सर। उसको उसको हाँ, उसको क्या करता है, डिफॉर्म कराता है, राइट। तो डिफॉर्म करने के कारण जो मेटल का जो आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जितना पीटोगे उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, क्यों, क्योंकि जो ग्रेन स्ट्रक्चर में जो वॉइड होता है वो दैट विल बी मिनिमाइज, ठीक है। यदि आप हैमरिंग करोगे, कैसे करते थे, सैंड में क्या करते थे हम, सैंड में हम क्या करते थे कि जितना रैमिंग करोगे तो उसका वॉइड है क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। कहने का मतलब पोरोसिटी विल बी लेस। सिमिलरली मेटल केस में क्या हो जाएगा, उसका वॉइड जो होगा लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो वॉइड विल मिनिमाइज, ठीक है। एंड जो आपका जो मेटल जो होगा, मेटल का ग्रेन्स होगा वो स्टेबल पोजीशन में चला जाएगा। अब कोई भी चीज स्टेबल पोजीशन में चला जाता है तो उसको उस पोजीशन से हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, am I right or not? यस सर। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल इनहेंसमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस प्रोसेस, जैसे मान लो कि फॉर्जिंग करते हैं तो मेटल का क्या हो गया, मेटल का वो आपका क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो क्या किया, रीअरेंज कर लिया, ठीक है, चेंज कर लिया, ठीक है। तो पहले की तुलना में ज्यादा कंफर्टेबल जोन में चला गया। अब कोई भी कंफर्टेबल जोन में चला गया तो उसको उस कंफर्टेबल जोन से निकालने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ज्यादा फोर्स की जरूरत यदि पड़ेगी तो मेटल का जो स्ट्रेंथ हो गया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैज बीन एनहांस्ड। सपोज करो कि आप बैठे हुए हो, राइट, ठीक है, आप बैठे हुए हो और आप लेटे हुए हो, किस अवस्था में आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, सोए हुए या बैठे हुए में, लेटे हुए में। हाँ, सोए हुए में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, राइट, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपको उठाने का कोशिश करता है तो उसको फोर्स कब लगाना पड़ेगा ज्यादा, आप बैठे हो तब या सोए हो तब, सोने सोना, सोए हैं हाँ, तो कोई व्यक्ति सोया है ज्यादा स्टेबल कंडीशन में और उसको आप उठाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वो क्या है, उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। सिमिलरली मेटल के केस में होता है, मेटल यदि स्टेबल कंडीशंस में चला गया, ग्रेन स्ट्रक्चर जो है अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल पोजीशन में ले आया, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, स्ट्रेंथ उसका बढ़ गया। उसको फिर से डिफॉर्म या फिर से उसको दूसरा अवस्था में लाने के लिए आप प्रयत्न करोगे तो यू हैव टू प्रोवाइड मोर फोर्स, राइट, ठीक है, आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग कंसेप्ट, राइट, ठीक है, इसको वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द मोटिवेशंस अबाउट द
metal forming process, how the metal this component can be manufactured by the process of metal forming, right? Okay, look at the figure here, right? Look at the figure here. This is what? This is a rectangular wall, रेक्टेंगुलर बार है, राइट? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड से आप क्या कर रहे हो, इसमें एक फोर्स क्रिएट, फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, राइट? ड्यू टू व्हिच देयर विल बी एलोंगेशंस, एक्सेलिंग एलोंगेशंस विल बी देयर, राइट? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं आप? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़े हैं? यस और नो? यस यस ओके, ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट इसमें आपने देखा होगा। टेंसाइल टेस्ट में क्या करते हैं हम, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, राइट? तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व की हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये जो रेड वाला है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द रेड कर्व, लुक एट द ओनली फोकस ऑन द रेड कर्व, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कर्व है क्या है, दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, जो वाई एक्सिस क्या है, स्ट्रेस है, एंड एक्स एक्सिस क्या है, स्ट्रेन है, राइट? ठीक है, लेकिन एक्चुअल केस में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, जो एरिया है हमने क्या किया था, कैसे कैलकुलेट किया था इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेन दैट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडिंग बाय क्या किया था हमने, एरिया, विच एरिया, which area which area, this is the area, initial area, right? This is the area, that is, suppose this is the a node, ए थोड़ा सा मेरे पास पेन अभी लाएंगे, कल से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, तो लिखा नहीं रहा, ठीक है, दिस इज द एरिया, दिस इज द इनिशियल एरिया ए नोट, राइट? ठीक है, समझिए बात को, तो ए नोट इज इनिशियल एरिया, ठीक है, तो हम जब बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, स्ट्रेस में एरिया जो है, एरिया को हमेशा क्या लेते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज ए नोट, ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम। बट यदि एक्चुअल सिनेरियो में हम देखो बात करते हैं, तो क्या एक्चुअल एरिया जो है, ईच एंड एवरी टाइम एरिया गेट डिक्रीज, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है लेंथ बढ़ रहा है, तो ड्यू टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, तो जैसे आपका जो एरिया घटेगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल सिनेरियो में इस केस की हम बात करते हैं, इस केस में, ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, घट गया, ठीक है, और मान लो कि प्रेशर जो फोर्स लगा रहे हो सेम है, एरिया जब घट गया तो प्रेशर जो हो गया आपका सेम रहा, सपोज, तो एरिया घट गया तो क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। एरिया क्या हो स्ट्रेस जाएगा, बढ़ेगा, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल केस में क्या होगा बताओ, एक्चुअल सिनेरियो ये मेरा हो जाएगा, दिस इज द एक्चुअल कर्व, राइट? ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल कर्व, एक्चुअल कर्व कौन बोला है, जो ब्राउन कलर से दिख रहा है, दैट इज द एक्चुअल कर्व, राइट? दिस इज द एक्चुअल कर्व, राइट? दिख रहा है ना, कर्सर मेरा दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है ना, दिस इज द एक्चुअल कर्व, राइट? ठीक है, तो हम एक्चुअल कर्व हम नहीं पढ़ते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, लेकिन हम क्या करेंगे कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जस्ट डिजाइन की कॉन्सेप्ट की बात करता है, राइट? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं, डिजाइन को रिलेट करते हैं, तो डिजाइन जनरली जो होता है किस रेंज में होता है, मेरा इलास्टिक रीजन में, राइट? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इलास्टिक रीजन मतलब क्या हो गया, एनीवन कैन डिफाइन what is elastic region, this is the region, right? This is the elastic region, दिख रहा है स्क्रीन पे, Yes, sir. ठीक है, दिस इज द इलास्टिक रीजन, ठीक है, दिस इज द Yes, sir. इलास्टिक, ठीक है। तो आपको क्या कहता है, आपका जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, कौन सा लॉ बोलता है, कौन सा लॉ, हुक्स लॉ, राइट? ठीक है, वेरी गुड। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक रीजन, राइट? ठीक है, तो इलास्टिक रीजन जहां क्या होता है, इलास्टिक कहने का मतलब यदि किसी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशंस देते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस,
द उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फोर्स को रिलीज करते हैं, द बॉडी विल गेट्स और ऑब्जेक्ट विल गेट्स इन ओरिजिनल शेप, रिगेट्स इट्स ओरिजिनल शेप। वो क्या करेगा, अपना जो पहले का स्थिति है उसमें वो वापस आ जाएगा। ठीक है, एक इलास्टिक कहने का मतलब एक रबड़ को आप खींचो, ठीक है, एक रबड़ को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आप फोर्स देना बंद कर दोगे तो वो रबड़ क्या हो जाएगा, जैसा पहले था उस कंडीशन में आ जाएगा। दैट इज द इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो इलास्टिक रीजन का मतलब क्या, वो समझ में आई? ठीक है, इलास्टिक रीजन कैसे डिफाइन करेंगे? इलास्टिक रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें आप यदि फोर्स दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स दोगे उसके बाद फोर्स को रिलीज कर दोगे तो वो अपना जितना डिफॉर्मेशन को गेन किया, दैट डिफॉर्मेशन विल बी रिलीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ठीक है, वो डिफॉर्मेशन को क्या रिलीज कर देगा। ठीक है, वो अपना इनिशियल पोजिशन में आ जाएगा। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं प्लास्टिक रीजन की, ठीक है, व्हेन द फोर्सेस विल बी बियॉन्ड द इलास्टिक रीजन, ठीक है, आप जब स्ट्रेस या फोर्स दे रहे हो बियॉन्ड द इलास्टिक रीजन, तो व्हाट विल बी द रीजन, इट विल कवर द प्लास्टिक रीजन। ठीक है, दिस इज द नोन एज प्लास्टिक रीजन, राइट? ठीक है, तो प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इसी रीजन में हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिजाइन की, तो डिजाइन कहाँ तक हम पढ़ेंगे, डिजाइन में यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद इन इलास्टिक रीजन, लेकिन इलास्टिक रीजन के बाद जाएंगे तो प्लास्टिक जोन आ गया, तो प्लास्टिक रीजन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये देखो प्लास्टिक रीजन अचानक से, अभी जो बताया स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण अचानक से स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ गया, दैट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, जहाँ पे मेटल क्या करता है, नेकिंग होने के बाद जो होता है, ये नेकिंग हो रहा है ना, नेकिंग कहने का मतलब क्या हुआ, नेक नाक की तरह यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, गले की तरह, राइट? सॉरी, नेक मतलब क्या होता है, गला, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे नेकिंग की तरह यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटल क्या करेगा, एक एक लाइन बना के, न्यूटन्स लाइन बोलते हैं इसको सर। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये ब्रेक कर जाएगा लाइन, तो इस दिस इज नोन एज फेल्यूर स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेलियर स्ट्रेंथ, राइट? ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जहां से मेटल क्या कर रहा है, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट? ठीक है, ये जो अचीव हुआ, क्यों हुआ अचीव, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण ये जो हुआ एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ हमें मिला, दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेन हार्डनिंग। अभी हमने बताया ना स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होता है, ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ crystal structure, right? ठीक है, due to the rearrangement of crystal structure. Clear to everyone? Is it clear to everyone or not? Is it clear or not? Okay, ठीक है, इसके बाद जो नेकिंग होना शुरू हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद नेकिंग होना शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ से मेटल क्या करता है, फ्रैक्चर कर जाता है, दैट इज मेटल गेट्स फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मिंग प्रोसेस में हम फेल होने, मेटल फेल होने की, यदि फेल होगा इसका मतलब क्या हुआ, मेटल क्या किया, फ्रैक्चर कर गया। लेकिन यदि आप डिजाइन में अब बात करोगे तो मेटल फेल कब होगा, जब उसमें कुछ इल्डिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे तब हम बोलेंगे कि मेटल फेल कर गया। ठीक है, मशीन कंपोनेंट कोई भी लिया, गियर भी है, ठीक है, तो कोई गियर मान लो क्या है, वो मैकेनिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसका डिजाइन क्या हम करेंगे, इलास्टिक रीजन के अंदर करेंगे ना। ठीक है, तो यदि इलास्टिक रीजन के अंदर करेंगे, लेकिन मेटल में यदि कोई मान लो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है, मान लो कि जो गियर का टीथ है, जो गियर का जो दांत होता है टीथ, ठीक है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा होने का मतलब क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, तो दैट विल नॉट बी सेफ फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, वो ऑपरेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्जिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ही हम बात करते हैं, मेटल को क्या करते हैं हम, इतना फोर्स देते हैं ताकि मेटल अपना शेप परमानेंटली चेंज कर देता है, राइट? दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन प्रोसेस। होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस। एम आई राइट? एम आई राइट? हेलो? सर खुद से कैसे सेट हो जाता है टूल? अरे आप फोर्स दे रहे हो ना, आप तो फोर्स हाँ हैमरिंग कर रहे हो, तो हैमरिंग के कारण ही तो वो अपना ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर ले रहा है, राइट? हैमरिंग के कारण वो अपना ग्रेन स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, राइट? ठीक है, क्लियर? ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफिनेशन, हाउ वी विल डिफाइन द टर्म मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस? एनीवन? एनीवन?
how you will define the term metal forming process? Metal forming process is what? It is the process in which the desired shape or size of or object can be manufactured through the plastic deformations of the material. Any material, किसी चीज का material का आपका बनाना प्रोडक्ट, so you have to go for the plastic deformation process, right? ठीक है, for the plastic deformation process, how much you have to apply the force? कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा? बियॉन्ड द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ शुड बी बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? और हर मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? अलग होता है। एल्यूमिनियम का अलग होगा, आपका कास्ट आयरन का अलग होगा। कास्ट आयरन तो अगर ब्रिटल होता है वो टूट जाएगा, राइट? ठीक है, तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा। माइल्ड स्टील का अलग होगा। क्लियर? क्लियर? Okay, very Yes, good. sir. Okay. Next, please look at here. This is very important slide. Okay, just we are going to establish the relationship between engineering strength and true stress. Engineering stress and true stress, as well as engineering strain and true strain. ठीक है, basically stress क्या होता है? Stress is nothing. It is what? Stress is force per unit. ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया तो डिफिनेशन गलत होगा। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रेस, ठीक है, डोंट से लाइक दिस, द स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस आल्सो मे बी द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को भी क्या करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को? Stress can be defined as it is the resisting force per unit area। ठीक है, किसी मटेरियल में यदि बाहर के फोर्स आप दोगे, बाहरी फोर्स दोगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, तो मेटल क्या करेगा? इंटरनल साइड में एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड दैट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? Yes, sir. समझ में आई बात? यदि Yes, आप, sir. ठीक है, यदि आपको कोई कुछ गंदा चीज बोला, बैड थिंग्स बोला, ठीक है, तो आपके अंदर क्या करेगा? रेजिस्टेंस का भावना आएगा ना, आपको एक दिमाग में क्या है? स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो वो किसके कारण आपके दिमाग में स्ट्रेस जनरेट हुआ? वो जो बाहर से कोई बोला आपको, ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत वर्ड बोला, उसके कारण आपके दिमाग में वो रिएक्ट किया। ठीक है, आपका दिमाग उसके रिस्पॉन्स में जो क्रिएट किया आपका स्ट्रेस, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन हमेशा याद रखोगे कि स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रहेगा डिफरेंस? प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की हमने बात किया, तो दिस इज द ट्रू स्ट्रेस, राइट? द ट्रू स्ट्रेस इज व्हाट? ध्यान से यहाँ पे देखिए, ट्रू स्ट्रेस इज द स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय द इंस्टेंटेनियस लोड एक्टिंग ऑन द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, जिस समय में जो एक लोड होगा, जिस समय एक पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है? पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, उस समय जो भी लोड होगा एंड जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, दैट लोड डिवाइडिंग बाय दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज ट्रू स्ट्रेस। समझ में आई बात? यहाँ पे हम जो बात की है, तो इस समय जो हमने बात किया, जो भी ये फोर्स का वैल्यू है, ठीक है, जो भी ये फोर्स का वैल्यू है एंड जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? ठीक है, स्ट्रेंथ जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है लाइक ए, ठीक है, तो P by A दैट विल बी योर ट्रू, सॉरी, दैट विल बी योर ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे प्रेशर, दिस इज द फोर्स हियर, एंड ओरिजिनल एरिया को डिवाइड कर देंगे, दिस इज द ओरिजिनल एरिया, दैट विल गिव यू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत अच्छा स्लाइड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड हाउ द एस्टेब्लिशमेंट कैन बी मेक केयर। ठीक है, तो दोनों में क्या एस्टेब्लिशमेंट है? हाउ द अनिल मरांडी, कितना लेट से आता है लोग भी। ठीक है, तो देखो सिग्मा टी मतलब क्या हो गया? ट्रू स्ट्रेस, राइट?
ठीक है, P by A, P is the instantaneous force and A is the instantaneous area, ध्यान रखिएगा। ठीक है, P by A, ठीक है, तो P by, देखो P by A into A नॉट बाई A नॉट, ठीक है, A नॉट बाई A नॉट क्या है, कुछ नहीं है, ये दोनों कट गया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या किए, इसको रीअरेंज करने के लिए हम लिखे, ठीक है, तो P नॉट बाई A नॉट, ठीक है, तो P बाई A नॉट को हम क्या किए, इस साइड में कर दिए, एंड यहाँ पे A नॉट है और A को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए A नॉट बाई A, ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू देखिए, दिस इज व्हाट, this is the volume consistency, A naught into L naught is equal to A into L. Can you write or not? Can be right or not? Can be right or not? यस, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे A नॉट डिवाइडिंग बाई A का वैल्यू, तो क्या निकल जाएगा, L बटा L नॉट, ठीक है, तो यहाँ से देखो L बटा L नॉट आ गया, ठीक है, और L क्या है, इंस्टेंटेनियस लेंथ है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, L नॉट इनिशियल लेंथ प्लस जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, जो इलोंगेशन हुआ, राइट, दैट इज द डेल्टा, डेल्टा प्लस L नॉट, ठीक है। उसके बाद हम इसको आपको रीअरेंज करेंगे इसको, तो L नॉट से L नॉट कट जाएगा, दैट इज 1 प्लस डेल्टा बाई L नॉट, ठीक है। अब बताओ कि डेल्टा बाई L नॉट क्या होता था, चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, तो 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, तो A डिवाइडिंग A नॉट बाय डिवाइडिंग बाय A, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज P बाय A नॉट, क्या हो जाएगा जी, P बाय A नॉट इज नथिंग, इट इज द सिग्मा, सॉरी इट इज द सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, इट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो P बाय A नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस कैन बी गिवन एज true stress is equal to sigma plus sigma into 1 plus epsilon, ठीक है, सिग्मा क्या है मेरे पास, सिग्मा इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, कुछ नहीं बोल रहे आप लोग जी, समझ में नहीं आया स्लाइड क्या, हेलो, यस सर। ओके, ठीक है, सर रौनक, हाँ ये वाला लाइन बताइए थोड़ा सा। यस सर। रौनक बताओ क्या दिक्कत है तुमको, ये वाला जब तुम, हाँ बोलो रौनक, ये वाला ये जो लाइन आप, कौन बोला लाइन, तुम बताओ रौनक, अच्छा ठीक है, ठीक है, राइट राइट मत करो, रुको, ठीक है, तो ये जो देखो हम बता रहे हैं कि जो आपका क्या है, एलोंगेशन क्या हो रहा है, एलोंगेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि एल, एल जो है इनिशियल लेंथ कितना एल है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एल क्या हो जा रहा है, फाइनल लेंथ क्या हो जा रहा है मेरे पास, सपोज कि एल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एल को हम लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एल नॉट, ठीक है, इनिशियल लेंथ प्लस देयर इज एन इंक्रीमेंट, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया, ठीक है, दिस इज द इंक्रीमेंट हियर, इंक्रीमेंट मतलब जो भी डिफॉर्मेशन हुआ, जो भी इंक्रीमेंट हुआ इन द लेंथ, ठीक है, डेल्टा, दैट इज योर डेल्टा प्लस एल नॉट डिवाइडिंग बाय एल नॉट, ठीक है, अब एल नॉट को एल नॉट से काट देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा बाय एल नॉट बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 बच जाएगा, एंड डेल्टा बाय एल नॉट क्या है, याद करो कि स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेंथ क्या होता था, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, दैट इज अ डेल्टा एल डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, याद करो, तो चेंज इन लेंथ क्या है मेरे पास, डेल्टा यहाँ पे है, एंड ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट है, ठीक है, that will be equal to epsilon here. Clear to everyone? Clear to everyone or not? यस सर। Okay, very good. ठीक है, तो अब समझ में आई बात, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्लियर, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे
ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। ठीक है, ये स्ट्रेस में रिलेशन हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, अरे यार कहाँ चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज स्ट्रेन हियर, लुक एट दिस फिगर हियर, फिगर सॉरी, दिस इज द बॉटम सेक्शन ऑफ द स्लाइड हियर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन इज द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन द इंस्टेंटेनियस गेज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इंक्रीज कितना है, dl अपॉन l, l इज सपोज इंस्टेंटेनियस गेज लेंथ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो दैट विल गिव्स यू द स्ट्रेन, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, तो मान लो dl बाय l है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या लिख सकते हो, log l लिख सकते हो। ठीक है, लिमिट टेकिंग फ्रॉम, लिमिट कहां से कहां तक लोगे आप, लिमिट कहां से कहां तक लोगे जी, बताओ जल्दी से, एल से, लिमिट कहां से लोगे, एल नॉट से एल तक लोगे। ठीक है, एल नॉट से एल तक लोगे लिमिट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू हियर, राइट। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू एल नॉट दैट इज इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, जितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, प्लस डेल्टा एल डिवाइडिंग बाय एल नॉट। ठीक है, अब सिमिलरली इसको रीअरेंज करोगे तो एल नॉट बटा एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाई एल नॉट। ठीक है, अब डेल्टा एल बाई एल नॉट क्या अभी बताया था मैंने, डेल्टा एल बाई एल नॉट अभी क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पे क्या बताया था, देखो डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज व्हाट, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो दोनों को याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी यस और नो सर। यस सर। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, समझ में आई बात। ठीक है, तो अब यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक स्लाइड जो है, किसी को कोई डाउट नहीं है जी, इसका मतलब तुम लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझे क्या, यहाँ तक क्या हम समझे, क्या क्या डिस्कस किया हमने। ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस का, सॉरी, मेटल पाउडरिंग प्रोसेस का डिफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस, राइट। उसके बाद हम क्या डिस्कस किए, क्या किस टाइप का प्रोडक्ट हम कैन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हम डिस्कशन किया। उसके बाद हम क्या किए, रिलेशनशिप बिटवीन, हमने क्या देखा कि रिलेशन, हाउ द relationship can be established between the true stress and engineering stress as well as true strain and engineering strain. ठीक है, these all are the, this is the, this and this one is the relationship between engineering stress and engineering strain as well as engineering strain as well as engineer sorry true strain, right। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो कल हम कुछ डिस्कस कर लेंगे और इससे रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज द इंस्टेबिलिटी एंड फ्लो स्ट्रेस, हाउ द फ्लो स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे हम आगे बढ़ने का, बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस में क्या अंतर है, राइट। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द क्लास व्हाट एवर आई हैव टेकन टुडे, यस और नो। Sir. Okay. So thank you. I am going to close the session because time is over. Today we will discuss more thing. If you have the questions, then ask me. Otherwise, I am going to close, right? Thank you.